Hello guys, welcome back to the online classes. Today in this lesson I am starting from the question number 2 of the exercise 9.2. First question in the basic introduction of this exercise we have discussed in the last video. So now I am starting directly from the question number 2nd. Statement of the question is, this is the second question of exercise 9.2. Question is, ABC is a triangle in which AD is median, and E is E is midpoint of median AD. क्वेश्चन आपके पास ये दे रखा है, E is midpoint of median AD of a triangle ABC, then prove that. What we have prove, हमें ये प्रूव करना है, to prove area of triangle BED is equals to 1/4 of area of triangle ABC. This is the required statement that we have to prove. First of all, what is the given thing here? Given that E is midpoint of median AD of triangle ABC. This thing is given. E is the midpoint of median AD of a triangle, then prove that this is equals to this, or area of the triangle BED. BED भी हो सकता है, CED is also possible, AEC or AEB we can select, or we can choose any one of them. 4 triangles, clear, which is equals to 1/4 of the area of the entire triangle, which is ABC. So let's prove. देखो, first of all, go back in the last video and check. I suggested you one example, which is the example number 3rd, or I said that it is the statement of a theorem. That's why I explained that one example, and the example was a median divides a triangle into 2 equal areas. So here AD is a median. AD is a median. It means AD divides this triangle ABC in 2 equal areas, or we can say that area of the triangle ABD will be equals to area of the triangle ACD. From triangle ABC, we know that a median divides a triangle into 2 triangles whose areas will be equal. ठीक है यहां तक? तो ये स्टेटमेंट अपन ने रिसेंटली एक थ्योरम में डिस्कस किया था, और मैंने ये प्रूव करके एक्सप्लेन भी किया था कि हाउ टू प्रूव दैट ए मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इन 2 इक्वल एरियाज. अब देखो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equals to area of triangle ACD. Let's suppose this is the equation number first, correct? Now here E is the midpoint of AD. E is midpoint of AD, therefore BE is also the median of triangle BAD. ध्यान से देखना,
बी ए डी ट्रायंगल मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ई मिड पॉइंट है इस साइड का, तो बी ई भी क्या हो गई, एक मीडियन हुई। सिमिलरली सी ई इज ऑल्सो अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। बात समझ में आई? इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, देयरफॉर ई बी या फिर बी ई एंड BE and CE are also the medians of triangle BAD and triangle CAD। बात समझ में आ गई होगी। CE BAD के लिए होगा, सॉरी BE BAD के लिए है, CE CAD ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगी, मीडियंस हो जाएंगे। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ध्यान से देखना, BDE, लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड सिमिलरली area of triangle CAE, triangle CAE is equals to area of triangle CDE, and this is the equation number third। अब देखो यहां से, चलो अब इसको अलग अलग स्प्लिट करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, इसका एरिया इन सभी के एरियाज के क्या इक्वल होना, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब ABD को मैं स्प्लिट कर रहा हूं, ABD को, ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ABD को मैं क्या लिख सकता हूं, ABD को स्प्लिट कर रहा हूं मैं, B देखो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो BAE एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE प्लस, ठीक है यहां तक, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर मैं एक काम कर लेता हूं, एरिया है तो अपन इसको कोई यूनिट कंसीडर कर सकते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। इसको मैं मान लेता हूं लेट, ये अक्स है और ये क्या हो गया, वाई है, ये मैंने अज्यूम किया है भाई, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दिया, थोड़ा इजी बन जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट से मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का मतलब हो गया BAE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE विल बी इक्वल्स टू, ACD का क्या मीनिंग होगा, ACD, तो CAE प्लस CDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CAE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, नीचे लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ठीक है, यहां तक कॉपी कर ले, मैं ऊपर से रब कर रहा हूं। चलो अब आगे, अब देखो BAE कहीं ना कहीं तो होगा, BAE किसके इक्वल है, अक्स के इक्वल है। तो अब मैं इक्वेशन सेकंड, थर्ड और इसको फोर्थ बोल देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, अपन क्या बोल सकते हैं, ये देखो क्या होगा, अक्स होगा, BAE इज इक्वल्स टू अक्स इज इक्वल्स टू, और BA इज इक्वल्स टू अक्स हो गया, फिर BDE इज ऑल्सो अक्स, ये प्लस है ना, प्लस है, प्लस अक्स इज इक्वल्स टू CAE का क्या मतलब हो गया, CAE इज वाई, प्लस CDE इज ऑल्सो वाई, एड देम 2x is equals to 2y, 2 cancel by 2, or we can say that x is equals to y। मतलब x is equal, ये भी दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये चारों के चारों म्यूचुअली क्या हो गए, इक्वल हो गए। Therefore we can say that एरिया ऑफ BAE, इसको बोल रहा हूं मैं ट्रायंगल BAE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE प्लस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CAE
एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ए ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, और इसको बोल देता हूँ लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 5th। बात समझ में आई यहाँ तक? अभी तक अपना स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें क्या चाहिए है, हम कंप्लीट एरिया भी चाहिए ना, हमें चाहिए है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैलकुलेट करते हैं, या फिर इन सभी को ऐड कर दो। इन सभी को ऐड करने से क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए ई प्लस, या फिर पहले एलएचएस ले लेता हूं, या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी। टोटल 4 ट्राइंगल्स में स्प्लिट किया हुआ है, तो इन सभी 4 ट्राइंगल्स के एरियाज को अपन सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो अपना रिजल्ट जो होगा वो इस कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी के एरिया के इक्वल होगा। सो इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ध्यान से देखना, मैं उधर से कॉपी कर रहा हूं बस। ए बी ई फर्स्ट वाला हो गया, ये फर्स्ट मान लेता हूं, ये सेकेंड मान लेता हूं, लेट्स सपोज दिस इज द थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई अपन ने कर लिया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ट्राइंगल बी ई डी बोल रहा हूं मैं, या बी डी ई जो भी बोलना चाहो आप, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, थर्ड क्या है, ए सी ई, ट्राइंगल ए सी ई, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, सी डी। ये स्टेटमेंट मिला, देखो हमें इसको एज इट इज रख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, देखो हमें ये प्रूव करना बी ई डी इज इक्वल्स टू ए बी सी। तो ए बी सी तो है, बी ई डी ये रहा बी ई डी, है ना, तो हम बी ई डी को एज इट इज रखेंगे और सबको चेंज करेंगे। देखो बी ई डी किसके इक्वल है, ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई और बी ई डी दोनों इक्वल है, तो ए बी की जगह मैं बी ई डी लिख रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी प्लस ये एज इट इज है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी प्लस ये ए सी ई, ये भी इसके इक्वल है तो इसकी जगह भी ये रखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी प्लस एरिया ऑफ, ये भी देखो यहाँ से ये इसके इक्वल रहा, तो इसकी जगह भी सी डी ई की जगह भी मैंने क्या लिख दिया, बी डी ई, ट्राइंगल बी डी ई। बात समझ में आई? यहाँ तक ये हटा रहा हूँ, आप कॉपी करते रहना जैसे जैसे रिमूव करूँ मैं। और ये मैंने लिया फ्रॉम इक्वेशन 5th, फ्रॉम इक्वेशन 5th। क्लियर? इन सब को ऐड करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, implies that 4 into area of triangle BED is equals to area of triangle ABC, और ये 4 डिनोमिनेटर में ले आओ, implies that area of triangle BED is equals to 1/4 of area of triangle ABC, hence proved। तो ये अपना प्रूफ होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप सो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई एम स्टार्टिंग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। Okay guys, the third question is, statement of the third question is, prove that the diagonals of a parallelogram divides it into 4 equal triangles in areas। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 3 ये है, एक पैरेललोग्राम अपन ने कंसिडर किया क्योंकि बुक में पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस किया गया है। इन्हें पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की जैसा लग रहा हो नहीं लग रहा हो, लेकिन है पैरेललोग्राम ही, ठीक है, क्योंकि मैं नीचे लिखूंगा गिवन स्ट्रक्चर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स, लेट सपोज ए सी एंड बी डी आर एनी 2 डायगोनल्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट पी पे मान लेते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? बुक में क्वेश्चन दे रखा है, स्ट्रक्चर नहीं दे रखी, तो स्ट्रक्चर आप खुद से एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन को, व्हाट इज द गिवन थिंग एंड व्हाट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू यू हैव टू प्रूव। तो आपको खुद को जज करना होगा कि अपनी स्ट्रक्चर किस टाइप से होगी और उसके अंदर क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी, क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे। अब पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया तो माइंड में डायरेक्टली हिट होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम इज ए स्ट्रक्चर और क्लोज पॉलीगन और एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसके अलावा इसकी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसका मतलब क्या होगा, ये इसके, हमें इससे मतलब है ये दोनों इक्वल होंगे,
ये इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगी, और ये अलग अलग सिंबल से डिनोट किया मैंने कि भाई ये 8 के जैसा है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, दीज आर इक्वल एंड दीज आर इक्वल. गॉट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन थिंग, गिवन दैट, अब तक तो समझ गए होंगे कि क्या दे रखा हमें. हमें यही दे रखा है कि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम बीसी इन पैरेललोग्राम ABCD in parallelogram ABCD, P is intersection point of diagonals AC and BD. यही तो दो ही तो डायगोनल है अपने पास, तो क्या कह सकते हैं अपन, P इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD. तो हमें एक स्टेटमेंट ये मिल गया कि P है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है. देयरफॉर क्या होगा, PB is equals to DP and AP is equals to PC. I have told about this definition and properties in the chapter number 8 और 9th में भी थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया है. अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है these diagonals divides this parallelogram in 4 triangles in equal areas. तो अपन बोल सकते हैं एरिया ऑफ APD, एरिया ऑफ triangle APD is equals to area of APB, triangle APB is equals area of triangle BPC is equals area of triangle DPC, area of triangle DPC. ये बात समझ में आ गई होगी आपके. आप देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. हमें पहले तो क्या इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है. कैसे भी कर दो चाहे प्रूफ. तो देखो मैं ये बोल सकता हूं AP जो है वो इस ट्रायंगल के लिए मीडियन होगी, ठीक है. DP जो है, पहले मैं दिखता हूं, देखो AP DP मैं लिख देता हूं, आप बाद में नोटिस करवा दूंगा. CP या AP BP CP एंड DP आर medians for triangles कौन कौन से ट्रायंगल्स. AP किसके लिए है, AP इज द मीडियन ऑफ फॉर द ट्रायंगल ADB और ABD कॉमा. BP किसके लिए है, ABC, ट्रायंगल ABC. CP इज द मीडियन फॉर ट्रायंगल BCD, ध्यान से देखना, ट्रायंगल BCD. एंड लास्ट DP किसके लिए है, DP इज द मीडियन फॉर द ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC. बात समझ में आई यहां तक. अब हमें ये स्टेटमेंट हमने एनालिसिस किया, P मिड पॉइंट होगा तो वर्टेक्स इसको जोन करवाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, एक मीडियन होगी. अब हमें ये सभी के सभी वैल्यूज क्या मिली है, मीडियंस के फॉर्मेट में मिली है. अब देखो मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एंड वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वैसे तो हम सब कुछ ही जानते हैं और कुछ भी नहीं जानते. वी नो दैट मीडियन डिवाइड्स a triangle in equal areas. बात समझ में आई कि ट्रायंगल डिवाइड होंगे और जो भी ट्रायंगल नया जो स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा नया, ऑब्वियसली ट्रायंगल बनेगा और दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा. और हम इस बात को वेरीफाई कर चुके हैं. अब हम यहां से लिख सकते हैं, इसका मतलब ये इसकी मीडियन है. तो एरिया देखो, फ्रॉम ट्रायंगल ABD अपन क्या बोल सकते हैं,
फ्रॉम ट्राइंगल ABD से क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ABP, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, ध्यान से देखो, APB इज इक्वल्स टू APD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APD. Let's suppose this is the equation number first. Second, from triangle, मैंने ABD सेलेक्ट किया, अब करता हूं ABC. फ्रॉम ट्राइंगल ABC, यहां से बोल सकते हैं एरिया ऑफ, ये सेलेक्ट किया, ध्यान से देखो, APB, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC. This is the equation number second. Again, from triangle, अब मैं ये ले रहा हूं BCD. From triangle BCD, what we can say that area of triangle BPC किसके इक्वल होगा, CPD, एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD. इक्वेशन नंबर थर्ड. अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ADC, अब देखो ADC से बात करते हैं, ACD या ADC जो भी बोलना चाहो, यहां से अपन बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका एरिया इसके इक्वल APD इज इक्वल्स टू CPD, एरिया ऑफ ट्राइंगल APD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD. इक्वेशन नंबर फोर्थ. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, what we can say, देखो APB, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APD, एरिया ऑफ ट्राइंगल APD. एंड APD और APB देखो इसके भी इक्वल है BPC के, तो यहां से लिख सकता हूं मैं, या फिर देखो APD पे आओ, APD किसके इक्वल है, CPD के. APD इक्वल्स टू CPD, तो APD किसके इक्वल्स है, एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD. और CPD पे आओ, CPD किसके इक्वल है, BPC के, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC. चारों ट्राइंगल, ये वैसे तो 8 हैं लेकिन ये हैं 4 ही. देखो APB ये रहा और APB ये रहा, तो एक तो ये बना, APD यहाँ पे है और APD यहाँ पे, सेकंड ये रहा, BPC 2 ये रहे और 2 ये रहे, तो टोटल 4 ही ट्राइंगल और चारों म्यूचुअल इक्वल हैं. और दैट्स वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना था कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 4 triangles whose areas will be equal to each other. So this is the solution of the question number 3rd. I hope so you understood. So pause again the video and note it down. Now starting the next question number 4th. Okay guys, so the next fourth question is ABCD is a quadrilateral. स्ट्रक्चर दे रखा है, मैं ड्रॉ करता हूं कुछ इस टाइप से, आपके पास स्ट्रक्चर दे रखा है, ये AB है और ये C है और ये D है, इनको ज्वाइन करवाया और ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो O है. हमें क्या प्रूव करना है, इन सभी का जो एरियाज है वो क्या है, इक्वल है. बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, इजीली कवर हो जाएगा. अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन दैट व्हाट इज द गिवन वैल्यूज हियर. गिवन इज ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल in which AB and CD are two diagonals. These are intersecting each other at point O, in which CO is equals to DO. So first of all given that AB and CD are two diagonals intersecting each other, R लिखा गया मैंने कहीं पे, चलो ये R आ गया तो वापस नहीं लिखना, intersecting each other at point O. ठीक है. And one more thing, where
where CO is equals to DO. Now what we have to prove? We have to prove that area of AOC is equals to, मीन्स इन सभी का एरियाज क्या है, मैं यहाँ पे ये ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल फर्स्ट, ट्राइंगल सेकेंड, ट्राइंगल थर्ड, ट्राइंगल फोर्थ, ब्रीफली लिख रहा हूँ, ठीक है, आप चेक कर लेना क्या लिख रहा हूँ. टू प्रूव नहीं, हमें ये प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB. ये हमें स्टेटमेंट जो है वो प्रूव करना है. सो लेट्स प्रूव. हाउ विल वी प्रूव? अब बात करते हैं प्रूफ की. देखो यहां से इस ट्रायंगल में लो, इन ट्रायंगल ACB, या फिर मैं ये बोल सकता हूं क्या, O मिड पॉइंट है CD का, तो AO इज द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल, BO इज द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल. एम आई राइट? प्रूफ हियर O is midpoint of CD. So AO and BO are medians for triangle ACD and triangle BC. बात समझ में आई? और वापस वो स्टेटमेंट, ए मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इनटू इक्वल एरियाज, बट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, बट वी नो दैट ए मीडियन डिवाइड्स a triangle in equal areas. बात समझ में आई यहां तक? तो इसका मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ AOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD. सो फ्रॉम ट्राइंगल ACD ले रहा हूं मैं, ACD लिया ना मैंने यहां पर भी, हाँ ACD, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD. बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगेन फ्रॉम ट्राइंगल BCD एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC is equals to area of triangle BOD. This is the equation number second. On adding equation first and second, मैं क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी जो कि कुछ उस टाइप से होगी जो हमें रिक्वायर है. इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल B, नीचे लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD. अब देखो AOC प्लस BOC, AOC एंड BOC क्या बनेगा, ABC. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD प्लस BOD. AOD ये वाला और ये वाला ऐड होके क्या देंगे, ADB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB. Hence proved. So students, it was the solution of the question number 4th of the exercise 9.2, and it is the last question for the today's lesson, and the remaining question we will discuss in the next video. I hope so you understood. So pause the video and note it down and enjoy.